all of you here to understand my view or our view regarding the letter which has been written by Father C.P. Bombay to Honorable Chief Minister of Maharashtra. Later, I got the copy, Father C.P. Bombay to Honorable. Later, I got the copy. It's not signed later. Later has two parts. In one part is regarding certain allegations against Home Minister, and second part is the Home Minister's direction to the CP against his advice to FIRs should be registered in the case of 7th MP Delkar, who committed suicide in Mumbai, and Mumbai police should register that case. That was the direction of the Home Minister. Advice of the CP was, though the suicide was in Bombay, let Delkar belong to Diu and Daman, and whatever the case was there regarding Diu and Daman administration, so it should be given to Diu and Daman administrative setup. That was the advice. You understand? Allegations against Home Minister, which is a serious allegation, is Home Minister has instructed some of the staff members of Bombay Police, they should collect 100 crores per month and hand over to him. You see, this particular allegation which CP has mentioned, he also said in his letter, he has briefed Honorable Chief Minister and me too, even Sharad Pawar. In his briefing to me and his letter which I read, there is no information about actually collection of money or actually money has been transferred or handed over to CM and not CM, Home Minister or his staff. This is an allegation. Regarding CP has mentioned my name, it is true that he met me. And he met me in connection with suppose his transfer, which Government of Maharashtra was going to issue the orders. He discussed with me and he said at that time there was a serious discussion, even today that discussion is serious there, regarding certain issue of Mr. Ambani's residence and certain sensitive material
was somewhat near to Ambani's residence in particular vehicle. This vehicle found certain sensitive things, and when Bombay police started investigating and media also started collecting information, one thing was brought to the notice. The vehicle was in the custody of late Haran, who was an automobile dealer. The vehicle was taken from him by one of the police sub-inspectors whose name is Wadi. This vehicle was used to keep explosive near the house of C. Ambani. Then media in Mumbai started collecting information about this Wade and some other people. Who is Wade? After getting information, I was told he was police sub-inspector. He was suspended about 16 years back, and recently he was reinstated in service. The decision to reinstate in service was neither taken by CM or Home Minister. It was taken by CP himself, and he was reinstated, and immediately he was given very important sensitive assignment. No, that was is under arrest now. I don't know whether ATS arrest or NI. They are investigation. One of the agencies has taken decision to arrest. कागज है इसके ऊपर कागज रखो The gentleman Hiren, who is known, who was assassinated, his wife has made a complaint to the police. The Wazir is responsible for her husband's murder. Or death. You can say death if so was that. So there is a specific allegation against this officer by DC's wife. Then question comes, this happened in the area operation of Mumbai Police. 2, it happened, the vehicle which was used by police officer was in the custody of fellow whose assassination has been made. 3, DC's wife has taken the specific name of particular police officer. And when Mr.
Commissioner of Police met us. These questions were asked to him. And he suggested we will go in depth and we will investigate. But now, when government took conscious decision to shift him from Bombay Commissioner to the Home Guard, I think then he made such a wild allegation. Prior to shifting him from Bombay Police, in 2 or 3 weeks' time, he never mentioned a single thing or he never made any allegation against Home Minister. All these allegations, when action was taken against CP Bombay and he was shifted from there to, as per his thinking, less important department. Now for us, he made the allegations. It is a prerogative of the Chief Minister to take appropriate decision. And CM has full authority to take decision regarding allegations, inquiry about these allegations. So one aspect of allegation is against Home Minister, and second allegations are against CP himself. If I ask, I will definitely discuss with CM, and I will suggest that this is very important and sensitive case. Allegation is made by police authority of Mumbai against Home Minister, and also there are series of lapses which was brought to the notice of media by certain sections by Bombay Police, which affect the reputation of Bombay Police too. So I honestly feel there has to be in-depth inquiry. Inquiry should be made by such officer or such a person who enjoy full respect in the police administration and at public at large. I am going to suggest, I don't know my suggestion about the gentleman whom I am going to suggest, whether he will accept. I have not discussed with him. But my suggestion to the Chief Minister, he should offer Julius Rivero, former police chief of Maharashtra, Bombay, and also contributed a lot for Indian police. Mr. Rivero's reputation is very, very high. And if he accepts this responsibility, the truth will come, and definitely public at large will start believing the police and Bombay Police particularly. Now if you want to ask anything, certainly you are free. पवार साहब, क्या सरकार को किसी तरह का खतरा है, क्योंकि बीजेपी ने इसमें अवसर निकाल लिया, आक्रामक है, क्या सरकार को खतरा है? बात ऐसी है कि ये होने के बाद जहाँ तक मुझे मालूम है तो मुख्यमंत्री ये इशू सीरियसली ले रहे थे, मैं जानता था,
और इस बारे में जो कुछ कदम उठाने की आवश्यकता थी वो आवश्यकता पर अमल करने की तैयारी उनकी थी। उसी समय हमने ये देखा कि प्रतिपक्ष के नेता दिल्ली में आकर जाने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली। उन्होंने डिमांड किया, मैं ये समझ सकता हूँ कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की ये जिम्मेदारी है और इसलिए उन्होंने इस तरह की डिमांड की होगी, तो मैं इनको कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, ये उनका अधिकार है, ठीक है, उन्होंने किया। मगर जहाँ तक सरकार की वो स्टेबिलिटी है, सरकार के स्टेबिलिटी के ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट इज वेरी वेरी सीरियस एंड गवर्नमेंट इज फुल्ली अवेयर कि ऑल दीज एलिगेशन in the form of letter written by former CP. These allegations have been made by him when he was shifted from important post to unimportant. सर क्या पवार सर अनिल देशमुख इस्तीफा देंगे? छोड़ दिया है आपने फैसला मुख्यमंत्री में छोड़ दिया, लेकिन आपको क्या लगता है कि अनिल देशमुख के गृह मंत्री रहते हुए जो जांच आपने सजेस्ट की है वो फ्री एंड फेयर होगी और अपोजिशन उस बात में एक्सेप्ट करेगा? नहीं, बात ऐसी कि उनका इस्तीफा देना ये इस बारे में ये डिसीजन डेफिनेटली मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, वो लेंगे। हमसे बात करने के बाद लेंगे, हम इस पर डिस्कस करेंगे। मैं अभी आगरा से आया हूँ, मैंने किसी के साथ बात भी नहीं की। जरूर ये सब इशू और इसका इम्पोर्टेंस देखने के बाद जो 2-3 अल्टरनेटिव हमारे सामने आ सकते हैं, इसमें आप जो कहते हैं ये भी आ सकता है, मगर ऐसी बात हमने कही नहीं अभी तक की। पवार साहब बैठक करने वाले हैं दिल्ली में, आप लोग क्या शाम को बैठक करेंगे शिवसेना के साथ, दूसरी पार्टियों के साथ? नहीं, कोई बैठक नहीं। मुझे मिलने के लिए मेरे स्टेट के पार्टी चीफ और यहाँ के हमारे लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता आने वाले हैं। इस्तीफा मांग रही है बीजेपी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, इस्तीफा मांग रही है, कह रही कि इस्तीफा दे दें आप। नहीं, ठीक है, उनकी जिम्मेदारी इस्तीफा मांगेंगे। सर आपको लगता है अनिल देशमुख के रहते हुए मतलब जो ये इंक्वायरी ये फेयर हो सकता है क्या, क्योंकि उनके ऊपर भी आरोप है? बात ऐसी है कि मैंने जिस व्यक्ति का नाम सजेस्ट किया है इंक्वायरी के लिए, इन्होंने इसका स्वीकार किया, तो कोई इनके रास्ते में आ नहीं सकता, सच्चाई सामने आ सकती। सर, इस घटना के बाद आपके सहयोगी जो दल है, चाहे कांग्रेस हो शिवसेना हो, उनका रुख क्या है? जाहिर है बातचीत 24 घंटों में हुई होगी। मैंने किसी से बात नहीं की, मैंने शिवसेना से बात नहीं की, मैंने इनसे बात नहीं की। मैंने सीएम साहब से खाली बात की यहाँ आते समय कि इस बारे में हम हमारे व्यू है आपको बताएंगे। पवार सर बातचीत हुई है साहब के साथ, क्या बातचीत हुई है उद्धव जी के साथ, आपकी क्या पवार सर बात इतने एक मिनट, सिर्फ ये बात क्या हुई, इतनी हुई। पवार सर सवाल है परमवीर सिंह इस तरीके का आरोप क्यों लगा रहे हैं सर? क्या ऐसी वजह है कि वो इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं? सीधी बात है कि ये इन्होंने कल आरोप लगाए, इससे पहले क्यों नहीं लगाए, ये भी बात आ सकती है सामने। दूसरी, ये जो उन्होंने इंसिडेंट कहा, एक तो पिछले महीने का या कल से 16 तारीख का था, तो 17, 18, 19 ये 2-3 दिनों में इन बारे में उन्होंने क्या नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। सडनली जब उनको पता लगा कि उनको मुंबई पुलिस से हटाकर होमवर्क को जाना होगा, तब शायद ये बात उन्होंने सामने की। पवार साहब इधर भी सुन लीजिए। सर क्या आप चाहेंगे कि कोई तटस्थ एजेंसी, सीबीआई जैसी कोई केंद्रीय एजेंसी इस मामले की जांच करे, क्योंकि आरोप पुलिस के एक बड़े अधिकारी सरकार के एक बड़े मंत्री पर लगा रहे हैं? इसीलिए मैंने जो नाम सजेस्ट किया है इन सभी के ऊपर है। आपको लग रहा है सरकार गिराने की कोशिश हो रही है इन एजेंसियों के माध्यम से, आपका आरोप है? सरकार गिराने की कोशिश होगी या नहीं मुझे मालूम नहीं।
सरकार का इस पर कोई असर नहीं होगा, ये मुझे मालूम है। पवार सर मेरा ले लीजिए। ये सरकार को इससे एक डिस्टेबिलिटी तैयार करने की कोशिश हो सकती है, मगर इससे कुछ होगा नहीं। पवार सर मेरा सवाल, पवार सर सवाल उठाया रविशंकर प्रसाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इन व्हाट कैपेसिटी शरद पवार वाज बीइंग ब्रीफ्ड बाय सीपी, ही इज नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। रविशंकर प्रसाद ने कहा इस लेटर पे ही कि सीपी परमवीर सिंह ने क्यों शरद पवार को ब्रीफ करने की बात की गई, इन व्हाट कैपेसिटी। उनको पूछिए ना, पवार सर ये इशू पवार सर मेरा सवाल है उद्धव ठाकरे की तरफ से अगर आपको अनिल देशमुख के इस्तीफा लेने की बात या हटाने का प्रस्ताव आता है तो आप तैयार होंगे? सिंपल ये बात है, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है सर। विल द पार्टी टेक इट्स ओन डिसीजन एंड हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। इस बारे में सीएम साहब का सलाह हम जरूर देंगे, हमारे पार्टी चीफ स्टेट के उनका सलाह देंगे, हमारी लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता इनकी सलाह देंगे, और जो कुछ कहना है देशमुख जी को वो भी इस बारे में उनका सुनना ये भी हमारा फर्ज है। और ये सब करने के बाद आगे क्या करना हम मिलकर तय करेंगे, कल तक करेंगे। सर, इस कंट्रोवर्सी में आपको लगता है कि महाराष्ट्र सरकार बदनाम हुई है, गंभीर आरोप लगे, कहीं ना कहीं एक सवाल उठा है सरकार के कामकाज के तरीके पर? नहीं, बात ऐसी है कि ये डेलीबरेटली किया है, ये कैसे किया इस बारे में मैं कोई अभी भाष्य नहीं करना चाहता हूँ, मगर ये बात साफ है कि जो एलिगेशन किए हैं इससे पहले क्यों नहीं किया, इससे पहले क्यों नहीं बात की है अभी? क्या वाजे की जांच परमवीर सिंह तक जाएगी, इसलिए परमवीर सिंह ने ऐसे आरोप किए? आपको क्या लगता है ये पूरा मामला देखते हुए वाजे की जांच जाएगी परमवीर सिंह तक? ये मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर ये मुझे बताया गया कि वाजे को रीइंस्टेट करने में कुछ इनिशिएटिव इसमें जिन लोगों ने लिए, इसमें एक सीपी का नाम है। वहाँ जो कमेटी थी, ये कमेटी फेल कर रहे थे एक सीट, तो 16 साल के बाद वाजे को सर्विस में लाने में कुछ न कुछ इसमें हिस्सा उनका है, और आने के बाद उनको सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सेंसिटिव जॉब दिया, वो भी काम उनसे हुआ है। Have you consulted with the Chief Minister on Julio Rebrio? You have suggested that Julio Rebrio is the name. Have you consulted? No, I have not consulted either CM or Rebrio. Just now I suggested. पवार साहब, आपसे अनिल देशमुख 2 दिन पहले दिल्ली में जब घर पे मिले थे तो आपने उनको ये कहा था कि कुछ शिकायतें आपकी आ रही हैं, क्या परमवीर सिंह आपके पास कुछ शिकायतें आ रही हैं? ऐसे कहा था, खबरें हैं, खबरें मुझे मालूम नहीं। क्या शिकायतें मिल रही थी पहले परमवीर से पहले भी आपको? परमवीर साहब ने कुछ कहा था इनके बारे में, ये बात सच है, बाकी किसी ने नहीं कहा। पवार साहब, सर आप कह रहे हैं कि परमवीर जिम्मेदार हैं वाजे को वापस सर्विस में लाने के लिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या गृह मंत्री के पास कोई फाइल नहीं पहुंचती? गृह मंत्री के नॉलेज में, सर सुन लीजिए, गृह मंत्री के नॉलेज में क्या सवाल नहीं होता? सवाल यह भी है क्योंकि शिव सैनिक थे, वाजे शिवसेना में थे, नेता विपक्ष ने आरोप लगाया है कि खुद उद्धव ठाकरे ने उनको वापस सर्विस में लेने के लिए पैरवी की थी, वकालत की थी। यहाँ तक मुझे बतलाया गया इसमें गवर्नमेंट में, यानी आइदर होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, इनका उनको रीइंस्टेट करने में कोई रोल नहीं। तो फिर उनका रोल क्या है? क्या गृह मंत्री फाइलें नहीं देखते? उनका रोल क्या है फिर? गृह मंत्री सब इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट करता है। पवार साहब 5 साल सरकार चल जाएगी महाराष्ट्र में, लेटर पर 5 साल सरकार चल जाएगी महाराष्ट्र में, मुझे कोई तकलीफ नहीं दिखाई देती। पवार साहब, जिस प्रकार से परमवीर सिंह ने ये लेटर लिखने की घटना घटी है, क्या आपको लगता है कुछ राजनीतिक हवा उसको मिली है और उसके चलते परमवीर सिंह ने ये लेटर लिखा है? मेरे पास कोई इस बात का सबूत नहीं है, मगर मैंने सुना दिल्ली में आकर गए थे जो भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर, ये भी दिल्ली में आकर गए थे, कुछ लोगों से बात की थी, उनका वो अधिकार है, मैं नाम नहीं कह सकता, और इसके बाद वहाँ एलिगेशन शुरू हो गई। पवार साहब, ये भले कहा जाए कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, लेकिन दबी जुबान या खुली जुबान ये कहते हैं कि सारी पावर पवार साहब के पास है जो दिल्ली से फैसला लेते हैं। पवार साहब ने क्या फैसला लिया है कि पवार साहब सारे फैसले लेते हैं महाराष्ट्र के? आपका फैसला क्या है? मुझे कोई अधिकार नहीं,
मैं कुछ फैसला लेता नहीं, पूछे तो सलाह देता है, नहीं पूछे तो नहीं देता। और साहब आपने भी महाराष्ट्र का नेतृत्व किया है, 100 करोड़ रुपए हर महीने की उगाही का क्या कभी पहले आपने सुना? और क्या ऐसा हो सकता है कि अगर ये ऐसा आरोप लग रहा है तो उसमें सीबीआई की कोई भूमिका नहीं हो? किसी सीनियर ऑफिसर एक ऑफिसर को पूछेंगे, वो हंसेंगे 100 करोड़ हर महीने की बात कहने के बाद। तो कितने मिलते हैं सर? मालूम नहीं आपका क्या एसोसिएशन है, ये कलेक्शन में आपका कोई इंस्टॉलमेंट होगा, कोई एसोसिएशन होगा तो आप पूरे इंफॉर्मेशन दे दो। पवार साहब पहले सचिन वाजे को शिवसेना से लिंक किया जा रहा था और परमवीर सिंह ने जो चिट्ठी लिखी उसमें अनिल देशमुख का नाम ले लिया। ऐसी स्थिति क्यों बन रही है कि बार बार घूम फिर के सरकार के ऊपर ही सब कुछ आ रहा है? बात ऐसी है कि जो सीपी के बारे में कुछ कदम उठाए शायद उनको पसंद नहीं होगी, शायद दुखी होगी, और ये जिम्मेदारी अपने सिर पर नहीं आनी चाहिए। इस बारे में डाइवर्सन की तय कीजिए होती। सर आपने कहा अनिल देशमुख के जो रेजिग्नेशन है उसका भी एक ऑल्टरनेटिव ओपन है, क्या क्या ऑप्शन है सर? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं हो पाएगी जब तक होम मिनिस्टर अनिल देशमुख रहेंगे, इस पे क्या कहेंगे? ये मैंने कहा है कि हम जिस व्यक्ति का नाम दे रहे हैं वो इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, इससे हमारा भरोसा है। एक, जहाँ तक मेरे पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट, वहाँ तक मेरे लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता, इन सबों के साथ हम तक बैठकर बात कर सकते हैं। कोई भी अल्टरनेटिव मुझे मालूम है जो कुछ निकलेगा उस लाइन पर हम आगे जा सकते हैं। सर एक बात दो प्रश्न मराठी प्रवास है वो समझ में नहीं ऐसे क्या परमवीर आप करेंगे? परमवीर भी दिल्ली आकर गए थे और इनसे देवेंद्र फडणवीस से भी कुछ मुलाकात हुई इस आरोप लगाने के पहले। क्या आप ये कह रहे हैं कि परमवीर सिंह जो आरोप लगा रहे हैं उसके पहले उनकी अपोजिशन के नेताओं से और जो फडणवीस और उनकी मुलाकात हुई तो उसके बाद ये आरोप लगा रहे हैं? बात ऐसी है कि उन्होंने कई लोगों के साथ बात की होगी, मेरे पास कोई खास सबूत नहीं है, मगर मैं ये समझ सकता हूँ कि प्रतिपक्ष के नेता ने इसमें कुछ इल्ज़ाम लगाए तो उनका फर्ज है, इनका अधिकार है, इससे हम सीरियसली लेते हैं। सर फैसला कब तक हो जाएगा? सर कब तक फैसला हो जाएगा देशमुख पे? मुझे लगता है कल या परसों हम बैठेंगे, कल ही बैठेंगे, कल डिसाइड कर देंगे कल। हाँ, क्योंकि आने के बाद बैठेंगे। सर आप मराठी आरोप कर रहा है सर कि इसमें बेटिंग का भी एंगल है और उसमें मंत्री और पुलिस अफसर भी इसमें इन्वॉल्व है। नीतीश रानी ने भी अभी एक ट्वीट किया है जिसमें पुलिस अफसर इन्वॉल्व है बड़े लेवल पे, वजह के मार्फत ये पूरा किया जा रहा है। क्या बेटिंग का भी इसमें एंगल है? मुझे मालूम नहीं, मैंने सुना नहीं बेटिंग का। इसमें दो चीज़ें है, एक सीपी ने किए हुए एलिगेशन एंड बी ये एमपी का सोसाइटी देलकर की आत्महत्या, ये दो इश्यूज इसमें है। सीपी ने अपने लेटर में लिखा है कि देलकर के इशू पर मेरे ऊपर दबाव लाया कि यहाँ केस FIR करे। भाई 7 बार जो MP होता है जिसकी आत्महत्या मुंबई शहर में होती है तो इसका कॉग्निजेंस पुलिस को लेना पड़ता है, नहीं लेना ये ठीक नहीं है। और इस बारे में कुछ कहा होगा ये तो इसमें मुझे कोई गलती लगती है। सर जब परमवीर आपसे मिले थे क्या क्या बातें हुई थी आप दोनों के बीच में? उससे उन्होंने बताया कि भाई मुझे जो कुछ शिफ्टिंग की बात हो रही है, मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है। अनिल देशमुख बारे कुछ भी चर्चा नहीं की उन्होंने आपसे? परमवीर जब आपसे मिले तो उन्होंने ये बात कही कि मेरे डिपार्टमेंट में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता था, इतना कहा था। Sir, is it putting a bad reputation to the party that the Home Minister has been given an allegation? इस पर सच्चाई क्या ये बाहर आने के बाद होगा, आज नहीं। And do you think that he should withdraw from the party, from the post till the time his... I have already said, I have already replied. सर चलो सर मराठी प्रश्न घ्याल। थैंक यू चीफ। थैंक यू सो मच सर। आज अगर कोई मीटिंग नहीं तो हम लोग जाएं? सर कोई मीटिंग है क्या शाम को? अगर मीटिंग नहीं हो तो हम लोग जाएं? मीटिंग है क्या सर आज? सर शाम को है मीटिंग, बता दीजिए। कमला पोस्टिंग अगर मीटिंग होगी तो बड़ी बात है, शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देशमुख पर कल या परसों तक फैसला हो सकता है। सीधा चलेंगे साहिल जोशी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बड़ी बात है, देशमुख का बचाव, साथ ही साथ सरकार पर कोई संकट नहीं है, आपसी सहमति से फैसला होगा। साहिल जोशी, शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या समझे अब?
देखिए, एक तरफ तो उन्होंने सरकार का बचाव करने की कोशिश की और दूसरी तरफ एक वाया मीडिया निकालने की कोशिश की है। जूलियो रिबेरो का नाम उन्होंने सजेस्ट किया है कि जिनके तहत इस पूरे एलिगेशंस का प्रोब हो सकता है। जूलियो रिबेरो ये महाराष्ट्र में, मुंबई में एक बहुत साफ सुथरे और क्लीन इमेज के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी जाने जाते हैं और कई बार वो पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में भी बात कर चुके हैं। तो उनके नाम पर अपोजिशन को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सोचते हुए शरद पवार ने उनका नाम सजेस्ट किया है। अब देखना है कि क्या सरकार सचमुच में जूलियो रिबेरो के अंडर कोई प्रोब कमीशन बिठा के इस पूरे मामले की जांच करती है या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ एक बात जो आज तक ने अभी खबर चलाई थी कि अनिल देशमुख पर हम जल्दी फैसला लेंगे, ये बात शरद पवार कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसका मतलब क्लियर है कि कहीं ना कहीं अनिल देशमुख की रिप्लेसमेंट ढूंढने का काम शुरू है। जाहिर सी बात है कि पार्टी में जिस तरीके की राजनीति है, पार्टी के अलग अलग नेता है, उनमें से किसको अब होम मिनिस्टर, क्योंकि अब ये कांटों की गद्दी बन गई है, और शायद ऐसे में कोई ऐसा सही कह रहे हैं, शायद यही बात है कि 1-2 दिन में फैसला संभव। साहिल, मैं लौटूंगी आपके पास। अशोक सिंघल हमारे साथ मौजूद है, शरद पवार के घर पर ही वो थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। अशोक सिंघल, बड़ी बात है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरकार पर कोई संकट नहीं, पहली बात उन्होंने क्लियर कर दी है, देशमुख पर फैसला 1-2 दिन में संभव। बिल्कुल नवजोत, साफ तौर से उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन देशमुख को लेकर के उन्होंने कहा डिस्कस करने के बाद, सब लोगों से बातचीत करने के बाद ही फैसला होगा और 1-2 दिन में फैसला होगा। तो अनिल देशमुख को लेकर के, हालांकि उन्होंने परमवीर ने जो आरोप लगाए हैं उसको कहा, सवाल तो जरूर खड़ा किया कि उन्होंने कमिश्नर रहते ये सवाल क्यों नहीं उठाए, अब क्यों उठा रहे हटने के बाद। और उन्होंने कहा कि परमवीर मुझसे मिले थे, उस टाइम उन्होंने मेंशन किया था अनिल देशमुख के बारे में, नाम न लेते हुए, कि पॉलिटिकल दबाव रहता है मेरे ऊपर काम करने को लेकर के। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इसकी जांच होनी, जो आरोप लगाए गए हैं। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि उस लेटर के ऊपर साइन नहीं थे परमवीर के। ये तमाम चीजें उन्होंने बोली है और बाकी पार्टी के नेताओं से, सीएम से डिस्कस करने के बाद ही अनिल देशमुख के ऊपर फैसला लिया जाएगा। लेकिन एक बात जरूर साफ है, उन्होंने ये भी कहा कि अनिल देशमुख को हटाने का भी एक ऑप्शन उनके पास बचा हुआ है, जिसके बारे में 1-2 दिन में फैसला होगा। लग रहा है कि जल्द ही अनिल देशमुख को पार्टी हटाएगी। जी। अशोक सिंघल, मैं लौटूंगी आपके पास। लगातार इस बड़ी